Assalamu alaikum. As we have our honored guest on the dais, I request Muhammad Hanzala Wastani to please start the session with recitation of Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون وما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. Jazakallah Muhammad Aslam. Talabul ilmi sariqatun ala kulli muslimin. With this, I welcome our honored guest, Dr. Munawar Zaman Saab, our CEO, Dr. Ilyas Ahmed Saab, and our beloved Dean, Dr. Azhar Ahmed Siddiqui Saab. I request Dr. Azhar to kindly felicitate Dr. Munawar. I request Dr. Azhar sir to kindly felicitate our CEO, Dr. Ilyas Ahmed Saab. I request Dr. Ilyas sir to kindly felicitate our guest Zakir sir. I request Shafi sir from Department of PSF to kindly felicitate Dean sir. With this, I welcome their comments and I request Dean sir to kindly hold the mic for introductory and welcome speech for the session. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we have gathered here for two things. One is we want introduction of our beloved speaker, renowned motivational speaker, founder of English House Academy at Hyderabad. Does not need any introduction. I hope everybody of you have seen the videos on YouTube. Maybe some people may have met him also, I don't know. How many of you have met him earlier? Very few. So this is a good opportunity for you to meet him. Awaaz kya? Arya? So now it is audible? It's good that all this trial should be along with me so that when he comes there should not be any disturbance. So the second purpose of this is to, now we had a blood donation camp, as you know. People have registered themselves, your seniors. As I said to your batch, how many of you are registered? And how many of you are going to give it there? Most of you are going, not only registered, but they are also going, giving the blood there. So I hope that as we have said, your batch will win, inshallah. So give the blood, that is very important. I am here just to take a couple of minutes, not more than that. I know you are eager to hear it. But he said that it will take 2-3 minutes for him to reorganize. So that time will take. तो क्या करना है? सबसे पहले तो last 2 years our batches are very lucky that they have met him. Last year we had a white coat ceremony
along with Munawar sir. This time, at that time he was busy, but still, in spite of all his busy schedule, he has now come to Aurangabad for only very short duration. And that also, as per the request of Maulana Huzaifa Sahab and Dr. Ilyas sir, he has agreed to come and meet you people. He himself is want to meet the new batch because previous two batches he has made. This is our third batch since he is coming here. And inshallah we'll have more interaction with you in the future. We'll have a grand program also for all the students at one time. Maybe open a program or maybe in an auditorium in the month of December, inshallah. So it's a good opportunity for you. You are lucky that you are having now interaction with him in one hall. Normally you have seen in the videos thousands of people, they cannot meet him, they cannot greet him. With so much chaos, so much rush there. So now it's opportunity to meet and greet him cool and calm. So I will not take more time. And second part is, once the program is over, you should go and donate the blood. That is very important. As I have said previously, blood cannot be bought in the market. You cannot create the blood. You cannot manufacture the blood. So blood, whenever the blood is required, it has to come from within us. And as we told to you previously, the blood will replace very fast in the body. So we will not have any harm in this. So inshallah every year in the month of October we will have a competition between the batches for blood donation. It should be a yearly affair and we will reward the batch who has given the most number of blood and inshallah this will follow. Bolo inshallah. So I will not take much time. Thank you. I will take this opportunity to thank Vinod Zawar sir for coming and sharing his thought with us. Thank you once again. Now the moment of patience has come. I request Munawar Sama sir to kindly take the mic and motivate us with his kind words. Assalamu alaikum and a very good morning to you all, wonderful future doctors of this great nation. I think I have done my job conveying salam, but I didn't get a response from anybody. In fact, I conveyed greetings in Arabic language and English language. If you are acquainted with any of the two, you please respond. Assalamu alaikum and a very good morning to you all, wonderful future doctors of this great nation. MashaAllah, you all are well acquainted with Arabic language, one of the international languages. Well, anyhow, let me take this opportunity to congratulate you all, wonderful students, for taking this decision to become doctor, inshallah, in the coming days. Over 20 million school-going children, they have dreams and desires. If you go to any school-going child and ask him, what would you like to become in future? They have only three choices. They would say either they would like to become a doctor or no, pilot, because they want to fly. Children, they love airplanes. And third, police officer. They have only three choices. Either they would love to become doctor, police officer or pilot. About 20 to 25 million youngsters today, they have dreams and desires to become doctor. Over 20 million youngsters today they have. If they are studying 10th or 11th or 12th, I'm not talking about the kids, I'm talking about the very responsible school-going children now. 10th, 11th and 12th grade students. About 20 million such students have dreams and desires. And among 20 million students, only 2 million students, they appear for the exam, that is NEET. And again, among 2 million students who have appeared, hardly a few students get the opportunity to crack the test and wear the wonderful white coat. Hardly a few individuals. People have dreams and desires
but they don't have the ability to transform their dreams into reality. They don't have that ability to accomplish their goals. They simply see the dreams, but they never know what they need to do to accomplish their dreams. But mashallah, you had that ability. That is the reason among 20 million youngsters, you were special students. You appeared and you cracked that exam as well. One of the very toughest exams. A big round of applause for yourself. For cracking one of the very tough tests. But let me bring it to your kind notice. You haven't done a very big thing by just cracking the NEET. The real test begins now. You have the very tough time now because you have to spend about 5 years here in this college. And among these 150 wonderful students sitting in this hall, I can assure you, almost all of you are very talented, very determined, and highly knowledgeable students, mashallah. But this is the age of social media. And the social media influences your hearts and minds and destroys you to the core. Half of the students from this batch and from all medical colleges, I'm not talking about the students of this college. There are many medical colleges across the nation, and whosoever today is pursuing this MBBS course, half of them are going to get distracted and destroyed because of the social media. And there are many such reasons where students deviate and get into depression. And once you get into depression, nothing goes to your mind. You never understand who you are. You never understand what your goal is. You never understand what you need to do here in this college. You will have no goals at all in your life. You just spend 5 years and go back home empty-handed. You came over here with a dream to have a certificate. That certificate which nation and everybody respects, that you are a certified doctor. I do not want you to be called just a certified doctor. I want the world to recognize you as a potential doctor, as a recognized doctor, as an experienced doctor, as an efficient doctor, as a visionary doctor. And to be called visionary, efficient, recognized, able, capable, you need to sacrifice many, many things, which today the youngsters are not able to sacrifice their emotions. They are getting victimized, and taking this opportunity, I would like to bring it to your kind notice. Do not be deviated, be determined. You all have the dreams and desires, mashallah. If I can see 150 students here, and if I ask you if you have dreams and desires, everyone would say, yes, I do have a dream. I do have a desire. Anybody please raise your hand and tell me, sir, मेरे कोई dreams, desires नहीं है. मुझे ज़बरदस्ती बिठाया गया यहाँ लाकर. Can anybody dare say this? हो सकता है 150 students में कोई एक हो सकता है ऐसा. है कोई? I have no dreams, I have no desires. अच्छा चले. Raise your hands. Those who are able to say, or those who wish to say that I have dreams and desires in my life. है कोई इस हॉल में? मेरे dreams हैं सर, मेरे desires हैं. हाथ उठाकर गवाही दें. अब जो गवाही नहीं देंगे वो बीच के हैं और बड़े डेंजर है. देखिए, या तो ड्रीम होना या ड्रीम नहीं होना. बीच के जो होते हैं हमेशा डेंजर के होते हैं. तो हाथ उठा दे थोड़ी देर. आपके पास है ड्रीम्स एंड डिजायर्स? एक बहुत ही शॉर्ट लेक्चर देता हूँ मैं आप ही के मदर टंग में, ताकि आपके दिल और दिमाग में ये बात जाकर बैठ जाए. ड्रीम्स एंड डिजायर्स सबके होते हैं, और वो फुलफिल कब होता है? जब आपको डेस्टिनेशन मिलता है. डेस्टिनेशन पर आप पहुंचते हो तो इसका क्या मतलब है बताएं? आपके ड्रीम्स हैं, आपके डिजायर्स हैं, और आप डेस्टिनेशन सेट करते हैं अपनी लाइफ में,
और वो डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हो, इसका क्या मतलब कि आपने अपने डिजायर्स, अपने ड्रीम्स को फुलफिल किया है। लेकिन इस बीच में आपको बहुत से रुकावटें आते हैं, बहुत से डिफिकल्टीज आएंगे आपको, बहुत से डिसअपॉइंटमेंट्स आएंगे आपको, बहुत से डिस्ट्रैक्शंस आएंगे आपको, आप डिविएट हो जाओगे। मैं लेक्चर दे रहा हूँ लेटर डी पर। किस पर? डी पर दे रहा हूँ। यू हैव ड्रीम्स एंड डिजायर्स एंड यू हैव ए डेस्टिनेशन इन योर लाइफ। वहां तक पहुंचने के लिए आपको डिफिकल्टीज आएंगे, आपको डिसअपॉइंटमेंट्स आएंगे, आपको डिस्ट्रैक्शंस आएंगे। ये डिसअपॉइंटमेंट्स, ये डिविएशंस, ये डिस्ट्रैक्शंस को किल करना है आपने, तो आपके पास में क्या होना चाहिए? आपके पास में डेडिकेशन होना चाहिए, आपके पास में डिटर्मिनेशन होना चाहिए। अगर आपके पास डिटर्मिनेशन है, डिटर्मिनेशन किसको कहते हैं? अज़्म को कहते हैं। तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ, दुनिया समझ रही थी कि मेरी कश्ती भंवर में है। आधे लोग को समझ में नहीं आया, मेडिकल स्टूडेंट्स है ना। तूफान तो जानते हैं, तवाफ भी जानते हैं, तवाफ जानते हैं ना। तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ, यानी एक इतनी बड़ी मुसीबत आई थी। तूफान एक मुसीबत ही होती है। तूफान मेरा तवाफ कर रहा है, मेरे अज़्म का तवाफ, मेरे डिजायर्स का तवाफ, मेरे ड्रीम्स का तवाफ, मेरे डिटर्मिनेशन का तवाफ। तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ, यानी सलूट कर रहा है, मेरे गोल फेरे मार रहा है। और दूर से दुनिया देखकर क्या समझ रही है? मेरी कश्ती भंवर में है। जब कश्ती के गोल पानी घूम रहा है तो कश्ती को क्या समझती है दुनिया? ये तो कश्ती का ही काम से। टॉर्नेडोज जब आते हैं ना, तो लेकिन कश्ती में जो सवार है वो इतना पॉजिटिव थिंकर है, वो कह रहा है कि दुनिया समझ रही है कि मेरी कश्ती भंवर में है, लेकिन ये जो पानी गोल मेरा घूम रहा है, ये मुझे मेरा तवाफ कर रहा है, मेरी वर्शिप कर रहा है, मुझे सैल्यूट कर रहा है। तो ये डिटर्मिनेशन आपका अगर है, ये डेडिकेशन अगर आप में है, डिसिप्लिन आपके लाइफ में है, फिर और एक डी प्लेयर लिखिए हुए। कितने डीज आपको डिस्ट्रॉय करेंगे? 3 डीज। क्या है? डिफिकल्टीज, डिविएशन और डिप्रेशन। आपको क्या करेंगे? डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब ये 3 डीज मैंने कहा, डिविएशन, डिस्ट्रैक्शन, डिसअपॉइंटमेंट्स, डिफिकल्टीज, ये आपको डिस्ट्रॉय कर देंगे। लेकिन इसका तोड़, इसके एंटीबायोटिक्स क्या है? डिसिप्लिन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन। अगर ये मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स में हैं तो फिर आपके लिए डेस्टिनेशन आसान हो जाएगा। लेकिन इन तमाम डीज में जो सबसे इंपॉर्टेंट डी है वो दुआ है। वो अपने पेरेंट्स की दुआ लेते हुए चलना। आपने पेरेंट्स की दुआ के बगैर आप डेस्टिनेशन तक पहुंच भी जाते हैं अपने एबिलिटी से, लेकिन अल्लाह ताला एक दिन ऐसा दिखाएगा आपको, ऐसा गिराएगा ऊंचाई से, फिर कभी खड़े नहीं हो पाओगे। आप जरूर जाओगे ऊंचाई पर, बुलंदियों पर, वहां से आपको अल्लाह गिराएगा, फिर कभी आपको कामयाबी नहीं मिलेगी लाइफ में। इसलिए आप सब लोग से मैं कहता हूं कि आप लोग अपनी लाइफ में डिसिप्लिन पहले ले आइए, डिस्ट्रैक्शन से बचने की कोशिश कीजिए। आपके पास में बहुत बड़ा गोल है, ऐसे ऐसी किताबें पढ़नी होती है। इट्स नॉट इजी टू कंप्रिहेंड the books you have in the next 5 years. It's very tough to apprehend. It's very tough. You need to spend a lot of time. If you see an athlete, they sacrifice lots of things. मीठा नहीं खाते हैं, चावल नहीं खाते हैं, जो चीज़ हाथ में है वो नहीं खाते हैं। बारिशें हो रही है, तूफानें आ रही हैं, घर में शादियां हो रही हैं, you find them getting up early in the morning and doing exercise. जितने एथलीट्स होते हैं सुबह 4 बजे जागते हैं, एक्सरसाइज 2-2, 3-3 घंटे करते हैं, फिर इवनिंग 3 घंटे करते हैं। क्या आप लोग वैसी मेहनत यहाँ पर कर रहे हैं? जो एक एथलीट ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल ले आने का ख्वाब देखता है, भले वो हार जाता है, बट 5 years, 6 years, 8 years इतनी मेहनत करते हैं, अपने दोस्तों को दूर, अपने रिश्तेदारों को दूर, अपने ख्वाहिशात को दूर कर देते हैं और सिर्फ अपने डाइट पर, अपने डिसिप्लिन पर, अपने एक्सरसाइज पर, अपने प्रैक्टिस पर फोकस करते हैं। तो आपको यहाँ इस हॉल में आपके दोस्त हैं,
150 स्टूडेंट से आप दोस्ती नहीं करेंगे यहाँ पर। इफ आई कम टू यू एंड आस्क यू हु योर फेवरेट फ्रेंड्स आर, तो आप 3 से ज्यादा नहीं लेंगे। बमुश्किल से यू पिक अप 3 फ्रेंड्स। यू हैव 150 ऑफ कोर्स, बट यू नेम ओनली 3। वो 3 या तो आपकी जिंदगी की को आबाद करेंगे या फिर आपकी जिंदगी को बर्बाद करेंगे। आपको आबाद करने वाले, आपको बर्बाद करने वाले इसी हॉल में हैं। ईद जब आती है, आप कपड़े लेने जाते हो, यू डू नॉट गो टू द शॉप एंड पिक द क्लोथ स्ट्रेट अवे। यू होल्ड इट, you feel it, you weigh it, you see in the mirror, you take the selfie, you send the pic to a few friends and seek their opinion, how you are looking, whether to buy it or not. एक कपड़ा लेने के लिए आप कितनी चीजें कर रहे हो, बमुश्किल 1 साल 2 साल पहनते हो, और जब दोस्ती करने की बात आई है तो आप कुछ भी क्राइटेरिया नहीं बनाया अपने लाइफ में, ब्लाइंडली दोस्ती कर बैठते हो, जो आपकी पूरी जिंदगी को तबाह कर देगा। जब आप आए थे 10th में 95% थे, 12th में 95% थे, नीट आपने जबरदस्त क्रैक किया, लेकिन आपकी तबाही कहाँ हुई है? मेडिकल कॉलेज में तबाह हो गया। क्यों? क्योंकि ऐसे बंदों से आपने दोस्ती की है जो आपको डिविएट भी किया है, डिस्ट्रैक्ट भी किया है, डिस्टर्ब भी किया है, और डिप्रेस करके आपको डिप्रेशन में डाल दिया है। तो टोटल डिस्ट्रॉय हो जाओगे आप। तो दोस्ती जो होती है वो आपको बिगाड़ती भी है, बनाती भी है। तो यहां से आपने डिसाइड करना कि आपके 3 दोस्त कौन होंगे। अगर उन 3 दोस्त में डिसिप्लिन नहीं है, डेडिकेशन नहीं है, डिटर्मिनेशन नहीं है, तो उनसे, और एक डी मैं आपको तोहफतन दे रहा हूं, डिस्टेंस योरसेल्फ फ्रॉम सच स्टूडेंट्स। देखो क्या प्यारा लेक्चर है, पूरा डी पर ही है। डिस्टेंस कर लें आप उनसे जिनमें डिसिप्लिन नहीं है, डिटर्मिनेशन नहीं है, डेडिकेशन नहीं है। तो आपने क्या करना है? gradually, slowly and steadily you need to distance yourself from them, because वो लोग आपकी जिंदगी को तबाह कर देंगे। वो यही इस हॉल में बैठे हुए हैं। तो आपके दोस्त कौन है? वो गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, वो गॉड फियरिंग होना चाहिए, वो स्टूडियस होने चाहिए, वो हार्ड वर्किंग होने चाहिए, वो अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करने वाले होने चाहिए। ऐसे इंडिविजुअल्स को आप अपना साथी बना लें तो फिर आप अपने डेस्टिनेशन तक बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। तो ये जो बिगड़ने का काम है, सिर्फ दोस्ती खराब करते हैं। आपको कसम खुदा की कोई प्रोफेसर यहाँ डिबेट करने की कोशिश करता है, डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है? भाई आज पढ़ेंगे नहीं, एक मूवी देखेंगे हम लोग, चलो 6 घंटे की मूवी, तीनों खान्स की मूवी दिखाता हूँ करके डॉक्टर रियाज साहब कभी बोले, डॉक्टर अजहर साहब कभी ऐसा बोले हैं? नहीं। प्रोफेसर्स दे नेवर डिविएट यू, दे नेवर डिस्टर्ब यू, दे नेवर डिस्ट्रैक्ट यू। तो ये डिविएट, डिस्टर्ब, डिस्ट्रैक्ट फिर कौन कर रहे हैं आपको? हॉस्पिटल के पेशेंट्स कर रहे हैं? कौन कर रहे हैं? आप ही के फ्रेंड्स आपको ये सब करते हैं। या फिर फ्रेंड्स को कुछ देर दूर रख लें, बराबर में सेट कर दें। सोशल मीडिया जो बला है ना, ये अच्छे जीनियस स्टूडेंट्स को तबाह कर दिया। मैंने देखा है ऐसे स्टूडेंट्स को। अभी वर्कशॉप के लिए एक स्टूडेंट आया मेरे पास, नीट की ट्रेनिंग लेने गया था। कहां पर गया? कोटा में। सबसे बड़ा होता है ना वो, तो एलन, राजस्थान में। 10th में 97, 11th में 96, 12th में 95, उसके बाद नीट ट्रेनिंग लेने कर गया। अब नीट ट्रेनिंग में इतना जीनियस स्टूडेंट्स कहता था कि मैं किताब एक बार देखता हूं तो पूरा लेसन याद हो जाता है सर मुझे, इतना जीनियस। एक डी ने उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। वो डी क्या है? ड्रग्स में इन्वॉल्व हो गया। वो कह रहा है कि इतना ड्रग्स ले रहा है, उसके हाथ ऐसे कांप रहे हैं। वो नहीं चाहता था कि वो ड्रग एडिक्ट हो जाएं, लेकिन माशरा, वहां के जो लोग हैं ना, लाखों स्टूडेंट्स पढ़ने जाते हैं। क्या सब डॉक्टर बनते हैं? डॉक्टर भी डी से शुरू हो रहा है, देखिए। नहीं। क्या सब लोग डॉक्टर बनते हैं? नहीं, सब डॉक्टर नहीं बनते हैं। उनको डिस्टर्ब करने के लिए एक बहुत बड़ी टोली होती है। वो कोटे में है, राजस्थान में। वो डिस्टर्ब करने आते हैं, डिविएट करने आते हैं, डिस्ट्रैक्ट करने आते हैं और ड्रग्स में इन्वॉल्व कर देते हैं। और ये जो सोशल मीडिया है, ड्रग्स है और ये इश्कबाजी है,
इस उम्र में अच्छे अच्छों को तबाह कर देती है इश्कबाजी। ये जो अफेयर सिस्टम है इस्लाम के अगेंस्ट है। इस्लाम इजाज़त देता है मोहब्बत करने का, कब? शादी के बाद। गवर्नमेंट भी इजाज़त देता है ऑपरेशन करने का, कब? सर्टिफिकेट के बाद। पहले ऑपरेशन करे जेल में डाल देंगे आपको। समझ में आ रही है बात? मैंने किताब पढ़ा, यूट्यूब से मैंने सीखा और मैं सर्जरी करूंगा। डॉक्टर साहब विल यू अलो दैट? यू नेवर अलो दैट। क्या सर्टिफिकेट मांगते हैं? उसी तरह अल्लाह भी ये सर्टिफिकेट बनाता है। क्या है? मैरिज सर्टिफिकेट। इसके बाद में इश्क करो, इसके बाद में मैं चैलेंज करता हूँ मोहब्बत करो, अपने बेगम से टाइम नहीं रहेगा। जब शादी से पहले 12-12 घंटे चैटिंग करते हैं। खाना खा लिया? नहीं खाया? टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जैसे आपकी अम्मी को फिक्र ही नहीं है। नो आई एम नॉट फीलिंग हंग्री, नो यू मस्ट ईट नाउ। देखिए कैसी खुशी हो रही है। चैप्टर छेड़ते ही ना ऐसी एनर्जी आ जाती है सब में। और ये डिस्ट्रैक्ट करने वाला चैप्टर है प्यारे बच्चों, ये डिस्ट्रॉय करने वाला चैप्टर है। ऐसा केयर करता है लड़का, क्या बताऊं, देखने वाला परेशान हो जाना। जो लड़की के माँ बाप को कभी फिक्र नहीं है। नो आई एम नॉट फीलिंग हंग्री, आई डोंट गो टू कॉलेज इफ यू डोंट टेक फूड। ओह नो यू मस्ट गो टू कॉलेज, ओके आई विल ईट करके वो फोटो लेके भेजती है। उससे पहले ही वो 2 रोटी खा लिया, तो झूठ बोल रहा है। ये धोखा, इट्स ए ट्रू डिसेप्शन। अल्लाह कह दिया भाई, अल्लाह से सच्चा कोई पूरे यूनिवर्स में है? अल्लाह कह रहा है ये दुनिया धोखे का घर है। ये कौन सा घर है? धोखा। यहाँ पे आप इंसाफ की तलाश में जाओगे, नहीं मिलेगा आपको इंसाफ। कहीं मिला तो थोड़ा मिलेगा। ये धोखे का घर है। ये पूरे जमीन में आपको धोखे धोखे नजर आएंगे। अब कोई बोलेगा आई लव यू मोर देन यू कैन एवर इमेजिन, झूठ बोल रहा है वो। आपको मोहब्बत करने वाले अल्लाह, फिर प्रॉफिट मोहम्मद, उसके बाद आपके पेरेंट्स। अगर पेरेंट्स बोलते हैं लव यू बेटा, वो 100% सही बोल रहे हैं। आपको 2 दिन पहले तक नहीं मालूम कौन है वो, और वो बोल रहा है यू आर सो ब्यूटीफुल, रियली? उसको भी मालूम वो ब्यूटीफुल नहीं है, वो एशियन पेंट की वजह से अच्छी दिखती है इंस्टाग्राम में। अब वो एशियन पेंट हटा ले, फिर आप इतना डिस्टेंस करेंगे जो कोरोना के जमाने में भी आपने डिस्टेंस नहीं दिया अपने आप को। धोखे का घर है ये। फिल्टर। एक लड़का आया सेल्फी लेने के लिए, सेल्फी ऐसा रखा, मैं खुद मुझे देखकर मैं समझ रहा हूँ ये रिकी पॉन्टिंग है। किसको देखकर मैं कह रहा हूँ रिकी पॉन्टिंग? अपने आप को देखकर ऐसा लग रहा हूँ ऑस्ट्रेलियन। वो फिल्टर किया, मालूम नहीं था मुझे उस जमाने तक फिल्टर भी कोई होता है। अचानक वेस्ट इंडीज का बंदा अमेरिकन हो जाता है फिल्टर में। अब वो फिल्टर की फोटो लगाकर आप लोग डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, डिविएट कर रहे हैं बच्चों को, बच्चियों को। ये सारी चीज़ों से आप लोग दूर होना है। मैं खैर जोक्स अपार्ट, मैं सीरियस नोट, सीरियस बात आपको बता रहा हूँ। आपको ड्रीम्स हैं, डिजायर्स हैं, डेस्टिनेशन तक आपने जाना है, डॉक्टर आपने बनना है, तो ये जो लव अफेयर्स हैं इससे बचना है आपने, याद रखना। इसमें अगर गए आप एक पोटेंशियल डॉक्टर नहीं बन सकते। आप डॉक्टर तो बनेंगे, विजनरी डॉक्टर नहीं बन सकते, याद रखना। आपको इश्क, लव, मोहब्बत टीचर्स और किताबों से और नॉलेज से होना चाहिए। इज दैट क्लियर? समझ आ गई बात? पता नहीं आप लोग लिख रहे नहीं लिख रहे, कोई पॉइंट लिख ही नहीं रहे। 2 दिन में भूल जाएंगे आप सब लोग। एक ही चीज याद रहेगी, अरे सर वो लव अफेयर पे कुछ बात किए थे, हमारी टॉपिक थी, बस उतना। ड्रीम्स हैं, अभी ना लिखें, कहने पर लिखने से कुछ नहीं होने वाला है। अभी सुने, दिमाग में लिखने की कोशिश करें। ड्रीम्स हैं, डिजायर्स हैं और डेस्टिनेशन है, और वहां तक आपने पहुंचना है। डॉक्टर आपने बनना है तो आपको डिस्टर्बेंसेस होंगे, डिस्ट्रैक्शंस होंगे, डिविएशंस होंगे, डिफिकल्टीज होंगे। इन सब को मारने के लिए आपके पास में डिसिप्लिन होना चाहिए, आपके पास में डिटर्मिनेशन होना चाहिए, आपके पास में डेडिकेशन होना चाहिए, और सबसे बड़ा जो डी है वो वालिदैन की दुआ होनी चाहिए। वो वालिदैन की दुआ लेकर आप मेहनत करेंगे, विजनरी डॉक्टर बनोगे, पोटेंशियल डॉक्टर बनोगे, एक्सपीरियंस डॉक्टर बनोगे, एफिशिएंट डॉक्टर बनोगे, कंपैशनेट डॉक्टर बनोगे इंशाअल्लाह। और आपको मजीद मारने के लिए सोशल मीडिया से दूर रहना है। आपने सोशल मीडिया में कभी इंस्टाग्राम यूज नहीं करो, ये नहीं कह रहा हूँ। इंस्टाग्राम में लिमिट्स होने चाहिए। और ये लव अफेयर है, ये आपको टू द कोर कोलैप्स कर देगा, टू द कोर।
ये लव अफेयर से बचना है, सोशल मीडिया से बचना है, ड्रग्स से बचना है। ये 3 ऐसे मेजर डिस्ट्रैक्शंस हैं जो बड़े बड़े जीनियस और स्टूडियस बच्चों की जिंदगियों को, करियर को तबाह कर दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम बच्चे ये इश्कबाजी से, ड्रग्स से, सोशल मीडिया से अगर अपने आप को दूर कर लें तो फिर इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट 10 years आप लोग बेहतरीन इस देश के डॉक्टर्स बनेंगे। लोग सल्यूट करेंगे आपको इंशाल्लाह। आप सब लोग कुछ देर के लिए खड़े हो जाएं, प्लेज लें मेरे साथ में, हाथ ऐसा रखकर प्लेज लें कि मैं अल्लाह को गवाह रखकर कहता हूँ, कहती हूँ, बोले इश्कबाजी से, सोशल मीडिया से, ड्रग्स से मैं दूर रहूंगा, रहूंगी। मेरा पूरा वक्त किताबों में और टीचर्स के साथ बिताऊंगा, बिताऊंगी। और हर दिन वालिदैन की दुआओं से मेरे ड्रीम्स और डिजायर्स मैं फुलफिल करूंगा और करूंगी। ये आपने अल्लाह को गवाह रखकर कहा। अब इसके बाद में डॉक्टर इलियास साहब मुझे फोन करके नहीं बोलना कि फलाना बच्चा को बुखार आया है इश्क का, फलानी लड़की सोशल मीडिया पर तबाह हो रही है, बैठे, ये नहीं बोलना चाहिए। इज दैट क्लियर? नो। चलिए, ये छोटा सा टॉक मुझे आपको देना था। आप लोग मेहनत करें, फोकस रहें। मैं हर जगह जाता हूं तो एक बात कहता हूं, विराट कोहली जब क्रिकेट खेलता है उसकी नज़र ऑडियंस पर होती है या फिर क्रिकेट में जो बॉलर होता है बॉलर पर होती है? बॉलर पर नहीं होती है, बॉलर के हाथ पर होती है। हाथ पर नहीं होती है, हाथ की उंगलियों पर होती है। उंगलियों पर नहीं होती है, उंगलियों की हरकतों पर होती है। इतना फोकस करना पड़ता है एक बॉल खेलने के लिए। अब ऐसे कितने बॉल्स खेले हैं, तो फोकस रह के खेलें तो चैंपियन बना। यस और नो? अगर वो बॉलर को ना देखकर खूबसूरत लड़कियों को देखते हुए क्रिकेट खेलता तो क्या चैंपियन बनता? कभी नहीं बनता। सोशल मीडिया पे कितने लोग आई लव यू बोले होंगे विराट कोहली को, कितने लोग मैं जान लुटा दूंगी बोले होंगे। अल्लाह ने 2 कान दिए विराट कोहली को, यहां से सुना, यहां से निकाल दिया उसने। क्यों? वो फोकस्ड इंडिविजुअल है, डिटरमिन्ड इंडिविजुअल है, डेडिकेटेड इंडिविजुअल है, डिसिप्लिन इंडिविजुअल है। वो अपने गोल पर ही नजर रखा है, दुनिया वालों पे नजर नहीं रखा उसने, खूबसूरत लड़कियों पर नजर नहीं रखा उसने। उसको इश्क हुआ है, लेकिन किससे हुआ है? क्रिकेट से हुआ है। आपको भी इश्क होना चाहिए। किससे होना चाहिए? एप्रिन से होना चाहिए, स्टेथोस्कोप से होना चाहिए, किताबों से होना चाहिए। ये चीज़ों से आप लोग मोहब्बत करें तो फिर आने वाले ज़माने में बहुत ज़बरदस्त डॉक्टर बन के आप भी कोई डॉक्टर इलियास साहब की तरह चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन के कोई मेडिकल कॉलेज चलाते रहेंगे इंशाअल्लाह। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला खूब इल्म से नवाजे आप लोग को। और मैं जो छोटे छोटे आसान लेक्चर दिया, उम्मीद करता हूँ कि आपके दिल दिमाग में ये चीज़ बैठी है और ये डिस्ट्रैक्शन से आप लोग बचे रहें। थैंक यू सो वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सर, आपके इतने डीप डायलॉग्स हमारे दिल में उतर गए। अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू।